میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے، مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، اب جبریل امین کو جگانا ہے۔ اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے، سوچا کیسے جگاؤں، ادب کیا ہوتا ہے۔ عرض کیا کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا کہ فرمایا یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ذرا سمجھیے گا بات کو، کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے۔ کیا کشادہ ہے؟ جو کلیم پر بند راستے تھے۔ ذرا سوچئے یہ کون سا سفر تھا؟ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا، ان the whole world nobody have power to speak with اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت موسیٰ سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ سے بات کر سکے بلا واسطہ، ڈائریکٹ ہے۔ آپ کو کلیم اللہ کہا گیا اور آپ اللہ سے بات کرنے کوہ طور پر جاتے تھے، کیسا مقام تھا؟ ان کو فیل کیسا ہوتا ہوگا کہ اس پوری کائنات میں I am one and only who can speak، جو اللہ کریم سے بات کر سکتا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب دل میں تمنا جاگی، مولا کلام کی سعادت دی ہے، ہم اپنا دیدار بھی کراتے ہیں۔ رب ارنی، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی نازل کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو پھر تم دیکھ پاؤ گے، مگر جب اس پہاڑ پر یعنی کوہ طور پر تجلی ڈالی گئی وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ کی تمنا بھی دیکھنا ہے، کہا گیا لن ترانی، آقا آرام کر رہے ہیں اور بلایا جا رہا ہے۔ صلاۃ والسلام میں ایک شعر سنتے ہیں، آج ذرا تسلی سے سمجھ لو اس کو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بڑا سفر بڑی تیاری ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے اپنے آفس جانا ہے، آپ زیادہ سامان لے کر نہیں جاتے، لیکن اگر آپ نے 3 دن کے مدنی قافلے میں جانا ہے تو آپ 3 دن کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ اللہ مکے مدینے کی حاضری بار بار عطا فرمائے۔ جب مکے مدینے جاتے ہیں تو ذرا بڑا بیگ بن جاتا ہے، احرام بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی ہوتے ہیں، سامان اور ہوتا ہے۔ جتنا بڑا ٹریول اتنی بڑی تیاری۔ یہ سفر کہاں کا تھا؟ یہ کتنا بڑا سفر تھا؟ حاضری دینی تھی بارگاہ الہی میں، جنت کا مشاہدہ کرنا ہے، آسمانوں کی سیر کرنی ہے، فرشتوں کی بارات آئی ہے لینے۔ تیاری کیسی کروائی گئی؟ نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، کعبہ مشرفہ کا وہ حصہ جو کعبے کا حصہ ہے، اللہ کریم وہاں بھی بار بار حاضری عطا فرما۔ حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئی، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، 1450 سال پہلے ایک بار نہیں، نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی ٹانکے کا نشان ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ براق کی بات بھی سن لو، جتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا، اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو اس کو ذرا اچھی گاڑی میں بلایا جاتا ہے، نارمل بندے کو کہا جاتا ہے آپ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ معزز ہو بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے، سواری بھیجی جنتی سواری، براق۔ اچھا، براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی؟ ذرا سنیے گا، حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے، جدھر تک آئی سائٹ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا، اگلا قدم ادھر رکھتا تھا، دوبارہ آئی سائٹ جدھر جاتی تھی، اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا۔ اور سبحان اللہ، براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگے، ذرا اسموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا۔ جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا، آسمان کی طرف، اب دیکھیے گھوڑے پہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور گھوڑا اونچائی کی طرف جائے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، کیونکہ گھوڑا اوپر جا رہا ہے۔
तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे। जब ये ऊपर जाता था तो पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी पाक को सवारी में तकलीफ ना हो। अच्छा, जब ये बुराक नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा है, आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर डिफिकल्टी होगी। फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे, किस शान से सवारी भेजी गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। बैतुल मुकद्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी, जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम एक ही वक्त में वो बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। सफे तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, मेराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको। सुभान अल्लाह। रहती दुनिया को ये बताना था। आला हज़रत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, सिर कहते राज को, यहाँ कहते हैं जाहिर होना। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नमाज से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब ये सब अंबिया जो है नबी पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहाँ जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ, कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या दिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम सूरह नजम में क्या कमाल के इरशादात फरमाता है। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़े तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमि इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम है। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ। कुरान कहता है फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई, रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है।
जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। मैं इंशाल्लाह बयान के आखिर में मुशाहिदात के बारे में भी बताऊंगा। ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। बड़ा लॉजिकली बात समझ लो, हर दौर के मुताबिक है ना अंबिया को मौजज़ात दिए गए, हर दौर के मुताबिक जैसा दौर वैसे मौजज़ात। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो जादूगरों का दौर था। उनका मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया। आपने असा डाला, वो अजदहा बन गया, फिरौनियों के सांपों को खा गया, वो आजिज आ गए। हजरत ईसा का दौर डॉक्टर्स का दौर था, इलाज दरियाफ्त हो गया था। उसको काउंटर करने के लिए आपको कैसा मौजज़ा दिया गया कि कुरान में लिखा है कि आप मादरजाद अंधों की आंखों पर दम करते थे, वो आंख वाले हो जाते थे। आप मुर्दों के लिए दुआ करते, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। तो जैसा दौर वैसा मौजज़ा। मेरे आका का जो दौर था, जिस दौर में नबी पाक आए, वो दौर कैसा था? वो दौर था अरबियों का फसाहत तो बलागत का दौर था, इंटेलेक्चुअल्स का दौर था। उस जमाने में बड़ा अजब मामला था। एक और बड़ी अजीब बात पहले भी मैंने बयानात में बताई है कि जो अरबी नहीं है वो क्या कहलाते हैं? हम क्या हैं? अजमी। अजमी का माना पता है? अजमी कहते हैं गूंगे को। हम कितना शौक से बताते हैं अजमी है। अजमी कहते ही गूंगे को, इसका माना गूंगा है। ये अरबियों का एक जोम था, अरबियों का मानना यह था कि अरबी बोल सकते हैं, ये अजमी, बाकी सारे गूंगे हैं। इनको अपनी जबान पर इतना नाज था। यानी उस जमाने में तलवार के लड़ाई के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ाई होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक के दरबार के नातगो शायर थे। दुश्मन नबी पाक की शान में गुस्ताखाना अशार लिखते थे, ये इधर से जवाब में नाते लिखते थे। एक मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाया, अब्दुल्ला तुम अशार दुश्मनों के मुकाबले में लिखो, तुम्हारे अशार उनके लिए तीर की मानिंद है। तो ये दौर था, उस दौर में नबी पाक तशरीफ लाए। अब जरूरी था कि प्यारे आका उनसे ज्यादा फसीह हो, उनसे ज्यादा खूबसूरत बात करें। अल्लाह ने नबी पाक के कल्बे अक़दस पर कुरान नाजिल कर दिया। जब अल्लाह के हबीब कुरान की तिलावत करते थे वो आजिज आ गए, वो परेशान हो गए। वो कहते ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कैसी बातें करते हैं। और कमाल की बात यह है, उन्होंने ये भी देखा था कि बचपन से अब इन्हें देख रहे हैं, ये किसी मदरसे में नहीं गए, किसी उस्ताद के पास नहीं गए। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने अपने हबीब को डायरेक्टली इल्म अता फरमाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने हबीब को ये सारे उलूम अता फरमाए। और जब मेरे आका गुफ्तगू फरमाते तो फिर क्या होता? बरेली के ताजदार लिखते हैं, आका मैं निसार तेरे कलाम पर। हुजूर आपकी बातें कैसी थी? जबान तो बहुत सारे लोगों को मिली है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े फुसहा बुलगा इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे। मेरे आका बात करते वो शॉक्ड हो जाते, एस्टोनिश्ड हो जाते, हैरान हो जाते, ऐसा लगता खुद गूंगे हो जाते। आला हज़रत कहते तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। क्या शान है मेरे आका की, बोलो सुभान अल्लाह। आला से फरमाते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समको समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मैं अर्ज कर रहा था कि ये तो वो दौर था ना कि जिसमें इंटेलेक्चुअल्स थे, फुसहा थे, उनका मुकाबला नबी पाक ने जब गुफ्तगू की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मगर मेरे आका का दौर वहां खत्म तो नहीं हो गया ना, है ला नबी अबादी, मेरे आका के बाद तो किसी नबी ने नहीं आना। अब मेरे आका का दौर सुबह क़यामत तक है। तो हो सकता है आज का ये मॉडर्न दौर
कोई मॉडर्न नौजवान आकर कहे, साइंसदान आकर कहे कि जनाब अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तुम्हारे नबी तो ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते थे, आज हम जनाब चांद पर पहुंच गए, मरीख पर पहुंच गए, बड़ा रॉकेटों का जमाना आ गया है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज तैयारे बन गए। बताओ क्या इस्लाम में तुम्हारे नबी के पास कोई ऐसा मौजज़ा है जो आज की साइंस को जवाब दे सके? अल्लाह अकबर। सुनो तो सही, हजारों साल का सफर करके मेरे आका आते हैं और कुंडी अभी हिल रही है। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं, बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात ये है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है, जब जान चली गई तो जहान रुक गया था, आका वापस आए, जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। आलादर कहते ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर। नबी पाक तशरीफ लाए और अब सुबह के वक्त मेरे आका ने उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये वाकया सुनाया, आपने कहा मेरे आका मक्के वालों को बताइएगा नहीं, वो मानेंगे नहीं, ये ऐसी बात है ये और आपकी मुखालिफत करेंगे। जरा गौर कीजिए, वो वक्त था जब फकत 40-50 तकरीबन 80-90 के करीब मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे, 11 सने नबवी का वक्त है। और मेरे आका ने फरमाया मैंने तो जरूर बताना है। नबी पाक ने मक्के वालों के सामने बताना शुरू किया। अबू जहल बदबख्त कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप मुझे कह रहे हैं मैं अगर मक्के वालों को जमा कर लूं उन्हें भी कहेंगे? बिल्कुल। मक्के वाले जमा कर लिए गए। कब बताइए आप क्या कह रहे थे? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, मैं आसमानों की सैर करके आया हूं। अल्लाह अकबर। मक्के में शोर बच गया। अबू जहल ने नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू की। कहा देखो ये कैसी बात करते हैं। कुफर वाले तो थे ही थे, कुछ ईमान वाले भी तजब्जुब हो गए। जो कमजोर ईमान वाले थे उन पर भी इम्तिहान की घड़ी आ गई। याद रखिएगा, वाकया मेराज जहां नबी पाक की शान और कदर मंजिलत को बयान करता है, वहां ये ईमान वालों का इम्तिहान भी है, ये टेस्ट भी है कि तुम्हें अपने नबी पर कितना एतमाद है। अल्लाह अकबर। जब ये शोर शराबा हुआ तो मक्के वालों ने कहा कि आज मौका अच्छा है अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का। याद रहे सैयदना सिद्दीक अकबर उस जमाने में भी बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े व्यापारी थे, उनका मुसलमान होना काफिरों को बड़ा खटकता था। उन्होंने कहा किसी तरह इनको दूर कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। फौरन पहुंचे सिद्दीक अकबर के घर पर, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, जिनका तुम बड़ा नाम लेते हो, बड़ा अजीब दावा करते हैं। कहा बताओ क्या कहते हैं। क्या वो कहते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं। अच्छा ये एतराज क्यों था, पहले थोड़ा टेक्निकली समझ लो। बैतुल मुकद्दस जो है वो 1 महीने का रास्ता था। ऊंट पे जाएं, घोड़े पे जाएं तो मक्के से बैतुल मुकद्दस 1 महीने का रास्ता, वापस आए फिर 1 महीने का रास्ता, 2 महीने का सफर। नबी पाक का क्लेम यह था कि मैं रात इशा भी यहीं पड़ी है, फजर भी यहीं पड़ी है और थोड़ी देर में होकर आ गया हूं। उनको समझ नहीं आ रही थी, लॉजिक ये कहती थी कि हो नहीं सकता है, मगर हर चीज लॉजिक से जवाब नहीं दिया जाता। सिद्दीक अकबर ने यह हमें सिखा दिया है। वो दरवाजे पर गए, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आ गया हूं। कहा वाकई मेरे आका कहते हैं? हो सकता है सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तजब्जुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही। कहा हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। कहा अबू बकर तुम तो बड़े होशियार, बड़े अकलमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है? क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूं। जब नबी ये पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा, मैं नबी ये पाक की जब उन बातों को मानता हूं तो मैं इसको भी मानता हूं। अब जरा जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं अकीदे की, ठीक है, हर 27 रजब को यह मामला होता है। हाँ उस दिन से लेकर आज तक हो रहा है कि उस दिन कुछ लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये इतनी देर में इतना बड़ा सफर कैसे हो गया। और कुछ दीवाने हैं जो कहते हैं शाह दूल्हा बना आज की रात है। ये नसीब वालों का हिस्सा है। सिद्दीक अकबर की राह पर चलने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, सारी दुनिया में मेराज की खुशियां मना रहे हैं। और जो अबू जहल को देख रहे हैं कि अबू जहल ने वहां भी आर्ग्यूमेंट किया था, वो आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं जनाब ये मेराज जो है ये रूहानी थी, ये ख्वाब में थी, ये फिजिकली नहीं थी। अरे बड़ा आसान, बच्चे भी समझ जाएंगे आज अगर मैं जिस बात को समझाने जा रहा हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर नबी पाक ने 27 रजब की सुबह यह दावा किया था, यह क्लेम किया था कि मैं ख्वाब में बैतुल मुकद्दस गया हूं, तो किसी को कोई एतराज बनता है? आपका बच्चा सुबह उठ करके अबू रात मदीने गया था ख्वाब में, है अबू फिर उसके बाद लाहौर भी गया, अमेरिका भी गया, सुबह उठा तो बिस्तर पर ही था, तो आप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं मैं भी रात घूमते ही रहता हूं ख्वाब में, कोई टेंशन की बात नहीं, ख्वाब में सारे ही जा रहे होते हैं। यानी कमाल यह है कि अबू जहल और मक्के वालों का यह एतराज करना और ये झगड़ा करना और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे तक जाना, ये इस बात की दलील है कि नबी पाक ने उस सुबह यही कहा था कि मैं फिजिकली बनफ्से नफीस जिस्म और रूह के साथ इस सफर पर गया था। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।